Assalamu alaikum student. Welcome back to Google Classroom. How are you student? Hope you are doing good. As well, always my sentence is there. If you having any kind of doubt regarding any question, I am there. Contact me. I will explain you the sum. But until and unless you should have practice of that sums. आप practice नहीं करोगे तो you will not get the where you are having problem, right? So today students we will start our remaining part of the exercise number 3.4, right? आज हम लोग जो बचे सम्स हैं वो कंप्लीट कर देते मीन्स एंटायर आवर दिस चैप्टर विल बी गोइंग टू कंप्लीटेड. ओके, सो एज यू नो वी हैव असाइनमेंट्स, सो कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स. ओके, so students, what is the question number 5 is given to us. Let me see these questions. See, I have written on the board also. ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5? See, prove that an equilateral triangle is an equiangular. ये प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है दैट इज एन इक्विएंगुलर, मतलब सारे एंगल्स भी उसके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. ओके, तो शैल वी स्टार्ट फॉर डूइंग दैट सम्स. हाँ स्टूडेंट्स, चलिए. नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन आई हैव रिटन ट्राइंगल एबीसी एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्वेश्चन बोला है आपने, मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया है. इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होता है? व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना. Equilateral triangle, when we say equilateral triangle is that when all the triangle having all side equal. Okay, so I had taken one triangle, I had put the name ABC, I written as a given part triangle ABC and equilateral. I have to prove that that triangle is an equiangular, मतलब all angles should be there in equal way. So shall we start? You know we have learned the isosceles triangle theorem. You have to use that theorem here only. ठीक है? So proof. Now this is a triangle now. So you should write in triangle ABC. हमने ये triangle लिया है जिसमें, okay, in that see already said triangle A side AB is congruent to side AC. You can take it segment AB is congruent to segment AC, right? You can take this. Okay, now that is an, you can prove that क्या है बेटा, ये side of the equilateral triangle. ये क्या है? equilateral का side है. Then now so therefore see you can go for this angle. This angle are the base angle of an equilateral triangle, है ना. तो by base angle we will going to take the isosceles triangle थ्योरम. ठीक है, हम क्या लेंगे इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. जैसे देखिए एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. ओके स्टूडेंट, समझ में आया? हमने क्या किए, ये दो बेस एंगल ले लिए, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. ठीक है, अब हम दूसरा एक ट्रायंगल लेंगे. अगेन हम एक ट्रायंगल वापस लेंगे, सेम ट्रायंगल का नाम लेंगे ABC, जहां AB से, लेकिन अब क्या होगा, A और C विल बी द बेस. अभी हम लोग चेंज कर देंगे. अब हम क्या करेंगे, B एंड A. अभी हमने ये वाले, देखो ये वाले ट्रायंगल को, ये वाले एंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे. ठीक है, अब हम लोग क्या बताएंगे, कौन सी दो साइड बताएंगे बताओ. अब हम लोग बताएंगे now we are going to prove the side segment AC is congruent to BC. अगर हमने इसको ट्रायंगल को टेढ़ा कर दिया, सी ट्रायंगल आपने ट्रायंगल को टेढ़ा कर दिया, I written A here, B here, C here. So A and B will be the isosceles triangle. These two sides will be congruent. Okay. So I am going to write segment AC is congruent to segment BC. Give the reason, side of the equilateral triangle. Okay, understood this much? Now we have to take the therefore which two angles I have. See angle A, angle CAB. You can write CAB और BAC भी आप लिख सकते हो. ठीक है, अब अभी देखिए. Now we have here BACB, है ना. इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, अब यहाँ आगे देखते हैं which triangle should be there.
ABC is congruent to BAC. You can write BAC. BAC कॉन्ग्रेंट किससे होगा बेटा? बोलो किससे लेंगे हम लोग? ABC से. ABC से. अब क्या लिखोगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल theorem. Okay. Now you can put this equation number 1 and this for equation number 2. Now see beta, I have here I have already AB equal ना, इसको हटा दो. You can take angle ABC is equals to angle ACB is equals to angle BAC. ठीक है, आप ऐसा ले सकते हो ना. अब जब तीनों भी यहाँ कैसा आया, you can take from 1 and 2. ठीक है बेटा. जब देखो see A is there, B also there and C. All three vertex of a triangles are equal. So therefore you can write here. I am going to write here beta. So therefore triangle ABC, when all the three angles are equal, so triangle ABC is an equiangular. ठीक है, तो तीनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, सो दैट ट्राइंगल विल बी इक्विएंगुलर. ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर congruent. Okay, see this part fast quickly. So I am going to explain the next sums to you. Okay student, now we will move for the next question number 6. That is also very easy to you. Okay, I am not going to write the question for you, then I am directly explaining you the sums. See, for this also, question number 6, you have to draw the diagram. क्या बनाना होगा आपको? यहाँ पर अभी डायग्राम बनाना होगा. My voice is audible to everyone? Come on. Now prove that if the bisector of BCA of a triangle ABC is perpendicular to the side BC and then triangle ABC is isosceles triangle. चलिए बता देते हैं isosceles triangle. So first for question number 6 I am writing here. Question number 6. See, you have to draw one like this. Perpendicular bisector आया ना बेटा? So you have to draw like this. Okay. Then A, B, C and D is a what is perpendicular? See, it is given already, है ना? Come on. Now proof. Direct we can go for the proof. Okay. Now we will consider to see already what is given. If the bisector of BAC, where is ये जो है ये क्या है? बाइसेक्टर जब होगा ना, when so these two angles should be equal. Okay, so proof. What we going to write here? In triangle I am giving two triangles ADB and second triangle ADC. Triangle ADC. Understood? ये दो हमने triangles ले लिए. Now in that I will going to explain. I will going to say angle BAD is congruent to angle CAD. Given है क्वेश्चन में, ठीक है बेटा. And next what we going to say? Come on say. अब हम क्या बता सकते हैं? Now you can see this side is common. Segment AD is congruent to segment AD. What do you going to say? Common side. Understood? Common side. Now you can see these angles are what? 90 degrees. So right angle ADB is congruent to angle ADC. Each angle 90 degree. Right now beta. See, when we have two angles on one side, so therefore ये जो triangle है, triangle ADB
कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC से बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, राइट ना, एंगल साइड एंगल टेस्ट. नाउ स्टूडेंट व्हाट इज द रिमेनिंग साइड? रिमेनिंग साइड देखो ऑलरेडी दो ये जो बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है, तो ये दो साइड अपनी क्या हो गई, बच गई ना. सो व्हाट वी गोइंग टू राइट सेगमेंट. सो देयरफॉर segment AB is congruent to segment AC, corresponding side of a congruent triangle, right ना. जब ये ऐसा होगा सेगमेंट AB और AC congruent है तो ये ट्राइंगल जो है दैट ट्राइंगल शुड बी अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is a isosceles triangle. Understood? Okay, come on, give me 2 minutes to complete the sum. Do it fast. Okay, shall we start the next question for you students? Come on. Now question number 7. Question number 7 for you. See, a diagram is given here to make that diagram. Okay. Question number 7. See. P, Q, R, S. Okay. Segment PR and segment QP are congruent. Show that PS side PS congruent greater than side PQ. आपको show करना है side PS greater है side PQ से. So students, when we want to show the greater sign, so you remember the opposite side of the angle should be greater ना. आपको ये theorem use करना होगा, ठीक है? Shall we start proof? Now we have to consider one triangle PQR. PQR, ठीक है, हमने ये triangle consider किए. Okay. Now remember what is given. क्या दिया हुआ है? Segment PQ और PR is given. PQ is congruent to segment PR. ये क्या है क्वेश्चन में? Given. Okay student, ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है ना. सो मीन्स व्हाट? अब ये हमारे पास दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ये बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. एंगल PRQ इज ग्रेटर देन एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR. देखो ये दोनों एंगल क्या हो गए? दो साइड कॉन्ग्रुएंट, बेस एंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय विच थ्योरम? आइसोसेलेस ट्राइंगल theorem. Understood? Put the equation number 1 for that. Understood beta? Now see angle PRQ, ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है PRS का, ठीक है बेटा? यू कैन राइट एंगल PRQ is an exterior angle ऑफ अ ट्राइंगल. कौन से ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है? वो PRS का. देखो PRQ ये एक्सटीरियर है किस कौन से ट्राइंगल का? PRS का. अंडरस्टूड? सो देयरफॉर एंगल
पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर, हमने क्या बता दिया इसको, ग्रेटर बता दिया, किससे, एंगल पी एस आर से। देखो पी आर क्यू ग्रेटर है एंगल पी एस आर से, रीजन लिखो। अब क्या रीजन लिखोगे, रीजन ये होगा द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अंडरस्टूड बेटा? हाँ, सो now you can put this as an equation number 2. Okay, now student remember this, instead of writing now that is angle PQR is greater than angle PSR। मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने PQR की जगह पर मैंने ये लिखा है PQR। देखो यहाँ पर ये एंगल इक्वल है इससे, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ, यस आई कैन राइट इट। लिखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। समझ में आई बात? ठीक है। नाउ व्हाट वी वांट टू राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, सी बेटा अभी मैं क्या लिख रही हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग पी एस आर, पी एस क्यू लिख सकती हूँ, एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। मैंने क्या किया, मैंने ये बता दिया कि एस आर क्यू या क्यू आर एस एक लाइन में है, क्यू डैश आर डैश एस क्या है, एक लाइन में है। समझ में आई बात? सो नाउ वी गोइंग टू टेक वन मोर ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल आप ले लेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा नाम है ट्राइंगल का, नाउ वी टेक द वन ट्राइंगल नेम, द ट्राइंगल नेम इज पी क्यू एस, बड़ा ट्राइंगल का नाम पी क्यू एस। ठीक है, ये वी हैव टेकन दिस ट्राइंगल। नाउ इन दैट ऑलरेडी हम बता चुके हैं फ्रॉम पुट द इक्वेशन नंबर 3 हियर। ओके, हमने क्या बता दिया कि एंगल पी क्यू एस इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है ये एंगल, पी एस क्यू से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, हमने ये ऑलरेडी बता चुके हैं। सो नाउ रिमेंबर दिस, जब जो पी क्यू एस ये साइड बड़ा है, किस कौन से साइड से वो बड़ा होगा बताओ, सेगमेंट किससे बड़ा है, ये एंगल कौन से साइड पे बड़ा है, अपोजिट साइड ये है ना, तो क्या होगा पी एस इज ग्रेटर। अब नेक्स्ट किससे है, पी एस क्यू, तो इसका अपोजिट साइड क्या है, पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू। ठीक है ना, यही तो आपको बताना था। आप क्या लिखोगे रीजन, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। अंडरस्टूड, ये आपको बताना था। कम ऑन डू इट फर्स्ट। मैं एक और लास्ट टाइम विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट। कॉमन स्टूडेंट, लास्ट वन क्वेश्चन शुड बी एक्सप्लेन टू यू, फिर हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। हियर आल्सो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल साइड एडी एंड साइड बीई इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए आपको भी अगेन प्रूफ करना है। अनटिल अनलेस आपको ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप लोगों को नहीं आएगा। हाँ, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस सम। ओके, now draw one good diagram. First of all, question number 8. Okay, ABD, राइट स्टूडेंट, ऐसे ही दिया हुआ है ना। और कम
Shall we start explaining this sum? First of all, you consider these two triangle. क्या लिखेंगे? In triangle ADB and one more triangle BEA. हमने ये दो ट्रायंगल लिया है. ओके, नाउ हैव टेकन टू ट्रायंगल्स और देखो ये दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है ना. सो एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEA, है ना. आप रीजन क्या लिखोगे? ईच एंगल 90 डिग्री. अंडरस्टूड? ईच एंगल 90 डिग्री आपने लिखना है. ठीक है. नाउ सी, एंगल का ऑपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, है ना. ऑपोजिट टू द 90 डिग्री साइड इज हाइपोटेन्यूस साइड. सो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट. अब देखिए इसके ऑपोजिट कौन सी साइड आपको दिख रही है? क्या दिखेगी आपको? कौन साइड दिखेगी बेटा? EA. देखो ये वाला, हाँ, सेगमेंट EA या AE भी लिख सकते हैं. देखिए इसके ऑपोजिट यही आपको साइड दिख रही है ना, तो आप क्या लिखेंगे? BA लिख दो. क्या लिखोगे? हाइपोटेन्यूस साइड. ओके. अब जब हमको मालूम है कि दोनों ट्रायंगल्स वी हैविंग 90 डिग्री, so we can go for the hypotenuse side test. Okay, now we will going to see what is one more given what is given AE and congruent to BD. So right here side BD is congruent to side AE और EA भी आप लिख सकते हो, चलेगा, कोई इशू नहीं है. ठीक है. Now so therefore triangle ADB is congruent to triangle BEA. यहाँ पर आप लिखिए ये जो है आपको गिवन है and this is came by the hypotenuse side test. Okay student. Now what is the remaining part? क्या रिमेन हो गया? देखो क्या रिमेन हो गया? AD, देखो ये पार्ट रिमेन हो गया है ना. एंड किससे? BE से. सो देयरफॉर सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE. क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना. सो आपको यही प्रूव करना था कि AD कॉन्ग्रुएंट है किससे या इक्वल है किससे? BD से. आपको यही जो है वो प्रूव करने कहा था. That you have completed. Now student, this is the assignment you have to do. Okay, take care. See, assignment is compulsory to do. Understood? Take care. Allah Hafiz.